Welcome to Scholarship Guidance Center. I am Anil Doshi sir, and today's topic is metric measures part 3. Now see, next problem is 9 meter square. Here 9 meter square is equals to how many centimeter square? Okay, 9 meter square is equals to how many centimeter square? Now see here first. Tell me 1 meter is equals to how many centimeter? 100 centimeter. You know that 1 meter is equals to 100 centimeter. Then 9 meter square is equals to 9 into 1 meter into 1 meter. Then 9 into 1 meter means what? 100 centimeter. Therefore instead of 1 meter I write 100. This 1 meter I write 100. Okay. And this centimeter 100 centimeter, and this is 100 centimeter, that is centimeter multiplied by centimeter is equals to centimeter square. And 9 into 100 into 100 is 90,000. Okay, 90,000, and therefore your answer is here 90,000. 90,000 means option number 3. Okay, now next question is how many poles can be erected over a length of 50 meter if the distance between two consecutive poles is 2 meter. Okay, how many poles can be erected over a लेंथ ऑफ 50 मीटर. अभी ऐसा 50 मीटर लेंथ डिस्टेंस 50 मीटर है, ठीक है. ये 50 मीटर में 2 मीटर के डिस्टेंस पर कितना पोल्स आएगा ये पूछा है, बराबर. तो हमारा फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, ओके, प्लस 1, ठीक है. अभी टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? 50, ओके, 50 डिवाइडेड बाय 2, 50 upon 2 plus 1. तो 2 1 जा 2, 25 2 जा 50. That means 25 plus 1, and your answer is 26. Here again 1 plus 50 upon 2, that is 25 upon 2. Sorry, 25. 1 plus 25 is 26 poles can be created. That is your last answer. Okay, that means option number 2 is your correct answer. Then next is how many poles can be erected on all the 4 sides of rectangular garden having length 50 meter and breadth 30 meter if the distance between two consecutive poles is 2 meters. अभी क्या है देखो, रेक्टेंगुलर ऐसा गार्डन है, ठीक है. इसका लेंथ कितना है? लेंथ इज 50 मीटर, ओके, एंड ब्रेड्थ इज 30 मीटर. तो पेरीमीटर कैसा निकालते हैं हम? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस breadth. Okay, see perimeter of rectangle is equals to, see this is length 50 meter, breadth is 30 meter, perimeter of rectangle is equals to 2 in bracket length plus breadth, right? 2 in bracket length plus breadth, that is the formula for perimeter of rectangle. Now see length is 50, length के जगह 50 डाला, breadth is 30, breadth के जगह 30 डाला. Okay, 50 plus 30, answer is 80. Okay, now see 80 इंटू 2 क्यों? बिकॉज 2 मीटर डिस्टेंस पे एक पोल हमें क्या करना है? डालना है. तो कितना पोल्स आएगा? 160 के ऊपर 80 पोल्स आएगा. तो हमारा आंसर क्या आएगा? 80 पोल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 80 पोल्स. ऑप्शन नंबर इज 4. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 125 मिलीलीटर मेडिसिनल बॉटल्स कैन बी फिल्ड फ्रॉम 30 लीटर्स ऑफ मेडिसिन. अभी हमारे पास कितना है? 30 लीटर्स. ओके, टेल मी फर्स्ट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. ओके, 30 लीटर्स मीन्स 30 इंटू 1000 मिलीलीटर, दैट इज 30,000 मिलीलीटर. ओके, अभी एक बॉटल कितना मिलीलीटर का है? 125. तो 30,000 मिलीलीटर हमारे पास क्या है? मेडिसिन है. और 125 लीटर का एक बॉटल ऐसा भरना है. तो 30,000 डिवाइडेड बाय 125, 25 मल्टीप्लाई बाय 1200, and 25 5 जा 125, 25 gets cancel. Then here it is 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना बचता है? 2, 5 4 जा 20, और ये 0, तो कितना बॉटल हो जाएगा? 240. ओके, कितना बॉटल होगा? 240 बॉटल्स. therefore ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर आंसर. Then next question is there are 45 students in each of the 10 classes of school. How many liters of milk is required if each is to be given to 50 मिलीलीटर ऑफ मिल्क. अभी देखो 45 स्टूडेंट्स एक क्लास में, ऐसा हमारे पास कितना क्लासेस है? 10 है. तो हम क्या करेंगे? 45 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना स्टूडेंट्स होगा? 450 स्टूडेंट्स, राइट है. और हर एक स्टूडेंट्स को कितना देना है मिल्क?
हाउ मेनी मिल्क इज रिक्वायर्ड, ईच वन गेट गिवन 250, तो 450 मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा हमें 250, राइट है। अब देखो 45 इंटू 10 दैट इज 450 स्टूडेंट्स है, ओके। फॉर वन स्टूडेंट 250 ml मिल्क इज रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर फॉर 450 स्टूडेंट्स 450 मल्टीप्लाई बाय 250 दैट इज 112500 मिलीलीटर। अब ये मिलीलीटर का लीटर में करना है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ओके। नाउ दिस 0 गेट्स कैंसल, 10 से डिवाइड करना है तो 1 डेसिमल पॉइंट किधर आना है, लेफ्ट में, तो इसका आंसर क्या आएगा 112.5 लीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 112.5 दैट इज ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज a grocery bill of rupees 280 is paid through equal number of notes of rupees 5, rupees 10 and rupees 20. What is the total number of notes paid? अभी देखो 5 रुपीज़ का कितना नोट्स है मालूम नहीं, 10 रुपीज़ का कितना है मालूम नहीं, 20 रुपीज़ का कितना है मालूम नहीं, बराबर। लेट द नंबर ऑफ इच नोट्स बी एक्स। हम क्या कंसिडर करते हैं, सबका एक्स एक्स नोट्स लेते हैं, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5x, राइट है। इसका वैल्यू कितना होगा 10 रुपीज़ का एक्स नोट्स है तो 10x, 20 रुपीज़ का एक्स नोट्स है तो 20x, और ये सबका वैल्यू कितना है 280 है। अगर मैं ये तीनों का एडिशन करता हूँ तो मुझे आंसर क्या आएगा 2। हियर लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी एक्स। अमाउंट कितना है हमारा 280 है, तो अभी मैंने बताया 5x प्लस 10x प्लस 20x इज इक्वल्स टू 280, 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 20 इज 35x इज इक्वल्स टू 280। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 35 मल्टीप्लाई, तो इधर क्या होगा डिवाइड 35, 280 डिवाइडेड बाय 35, 7 4 जा 28, तो ये 0 एज इट इज, 7 5 जा 35, 7 7 गेट्स कैंसल, तो क्या बचता है 40/5, 5 1 जा 5 8 जा, तो नंबर ऑफ नोट्स कितना आया 8। अभी देखो 5 रुपीज़ का 8, 10 रुपीज़ का 8 और 20 रुपीज़ का भी 8, तो हमें क्या पूछा है नंबर ऑफ नोट्स, तो कितना नोट्स आएगा 8 8 8, तो कितना आएगा टोटल 24 नंबर ऑफ नोट्स। 24 number of notes means number of total number of notes paid, so 24 means option number 2. Then next question is 13 notes of rupees 20,000, 40 notes of rupees 500 and 80 notes of rupees 50 amounts to how much। अभी देखो 13 notes of 2000 है, सॉरी 2000, 13 notes of rupees 2000, तो 13 into 2000, ठीक है। 40 notes of rupees 500, तो 40 into 500 इतना अमाउंट हो गया। 80 नोट्स ऑफ रुपीज़ हाउ मच 50, तो 80 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 50, इतना अमाउंट हो जाएगा। अगर ये तीनों का हम एडिशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा टोटल। नाउ सी अमाउंट ऑफ नोट्स 2000 का 13, तो उसका वैल्यू हो गया 13 2 जा 26,000, 500 का 40, 5 4 जा 20, 20,000, 50 का 80, 8 5 जा 40 और ये 2 0 4000। अगर हम तीनों का एडिशन करते हैं तो कितना आएगा आंसर 50,000, डेट मीन्स अमाउंट इज इक्वल्स टू 50,000, अमाउंट इज 50,000, डेट इज ऑप्शन नंबर 3, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेकेंड्स मेक अ डे, ओके। नाउ हियर 1 डे मीन्स हाउ मेनी आवर्स 24 आवर्स, 1 घंटे का मीन्स 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, ये तो आपको मालूम है, और 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स 60 सेकेंड। तो हमें ये तीनों का क्या करना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। वाई मल्टीप्लीकेशन, बिकॉज आवर क्वेश्चन इज हाउ मेनी सेकेंड्स इज इक्वल टू डे, ओके। नाउ 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, एंड इफ वी डू दिस मल्टीप्लीकेशन योर आंसर इज 86,400 सेकेंड, और आंसर इज 86,400 सेकेंड, 86,400 सेकेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मिनट्स मेक अ वीक, ओके। कितना मिनट का एक वीक होता है, देखो 1 वीक इज इक्वल टू हाउ मेनी डेज 7 डेज, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, और 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मिनट्स तक क्या आना है, सेकेंड में नहीं, क्योंकि इधर क्या पूछा है हाउ मेनी मिनट्स इज इक्वल टू 1 वीक। यू नो दैट 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ओके, एंड 1 आवर्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो तीनों का क्या करना चाहिए multiplication, that means 7 multiplied by 24 multiplied by 60, and your answer is 10,080 minutes. Last answer is 10,080 minutes. Here 10,080, 10,080, that is option number 2, okay.
Then next question is, a bus takes 4 hours 20 minutes to reach Amravati from Nagpur. If the bus reach Amravati at 2:55 p.m., what time did bus leave Nagpur? अभी नागपूर से बस किधर जा रही है? अमरावती. ओके, नागपूरवरून बस कुठे जाते? अमरावतीला. एंड स्टार्ट्स फ्रॉम नागपुर एट 2:55 p.m. अभी मुझे बोलो 2:55 p.m. मीन्स कितना? इसमें क्या करते हैं हम? 12 ऐड करते हैं. 24 आवर्स का टाइम लेना है तो बराबर. तो 12 + 2 कितना आएगा? 14:55. ओके, कितना बजे स्टार्ट हुई वो? 14:55. ठीक है, तो अभी ये कैसा करना है जरा देखते हैं. देखो, बस नागपुर से स्टार्ट किया बस ने, वह किधर आ रही है? अमरावती में आ रही है, बराबर. और अमरावती में कितना बजे पहुंचती है? 2:55 p.m. तो मैंने अभी क्या बताया? 2:55 + 12 करना है तो 14:55 p.m. मीन्स 14:55. इसमें PM नहीं लिखते. 14:55 को क्या होती है? वो अमरावती में पहुंच रही है, बराबर. तो अभी कितना घंटा लगता है नागपुर से इधर? 4 घंटा 20 मिनट्स, मीन्स 4 आवर्स 20 मिनट्स. तो इसमें से मुझे 4 आवर्स 20 मिनट्स क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. तो 14:55 - 420 अगर हम करते हैं तो आंसर आता है 10:35 AM. तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा इधर? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1, सी ऑप्शन नंबर 1, 10:35 AM. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 978 coins of 50 paisa each are converted into 17 coins of rupees 2 each. Okay, 21 coins of 5 each and the remaining amount into 10 notes. Okay, देखो इधर 978 coins of rupees 50 पैसा है, तो कितना रुपीज होगा? तो 978 डिवाइडेड बाय 50. ओके, या 978 मल्टीप्लाई बाय 0.50, इतना नोट्स होगा, बराबर, इतना रुपीज होगा वो. ठीक है, एंड 17 कॉइन्स ऑफ 2 ईच, मीन्स 17 कॉइन्स है 2 रुपीज़ का, तो 17 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे? 2 करेंगे. एंड 21 कॉइन्स ऑफ 5 का मतलब 21 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके, ये समझ रहे? अब ये देखते हैं हम कैसा करेंगे ये. शेयर फर्स्ट 978 डिवाइड बाय 2 किया, क्योंकि 2 50 पैसा का 1 रुपीज़ बनता है. तो आंसर आएगा 2 4 × 8 रुपीज़, 2 4 × 8, 2 8 × 16 एंड 2 9 × 18, दैट इज 489. और हम कैसा कर सकते हैं? 978 मल्टीप्लाई बाय 0.50, क्योंकि 50 पैसा है, तो उसका भी आंसर कितना आएगा? 489. ये समझा इतना? अभी आगे देखते हैं. 17 कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 2 ईच, दैट इज 17 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज आंसर इज 34. ओके, देन 21 कॉइन्स ऑफ रुपीज़ 5 ईच, तो क्या आएगा? 21 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 105. ओके, एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज रुपीज़ 10 नोट्स. तो ये सबका एडिशन कितना आ रहा है अभी? 139. टोटल अमाउंट कितना है हमारा? 489. ठीक है, तो 489 से 139 क्या करेंगे हम? माइनस. तो आंसर क्या आएगा? 9 - 9 0, 4 - 3, 4 - 1 3, तो 350. अभी 350 में 10 रुपीज़ का कितना नोट्स हो जाएगा? बोलो तो 350 10 रुपीज़ नोट्स पूछा है ना, तो 10 रुपीज़ नोट्स कितना हो जाएगा? 10 नोट्स ऑफ रुपीज़ 35. 350 में कितना होगा? 350 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर कितना आता है? रुपीज़ 35. ओके, 35 नोट्स. सो ओके, फॉर 35 10 रुपीज़ का नोट्स आएगा. ठीक है, तो अभी हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन एंड नोट्स. ओके, पहले देखो, पहले हमारा कितना है कॉइन? 17 कॉइन्स है. ठीक है, 17 कॉइन्स आया. उसके बाद कितना कॉइन्स है? 21 कॉइन्स है. अभी 10 रुपीज़ का कितना नोट्स आया? 35 नोट्स आया. तो अगर ये सब का हम टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है? 73. देखो फिर एक बार, पहला कितना कॉइन्स है? 17 है. उसके बाद 21, उसके बाद 10 रुपीज़ का 35 नोट्स, तो टोटल इज 73. दैट इज ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर 2. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ 1 ग्रॉस बुक्स ऑफ सेम टाइप इज 36 kg. व्हाट इज द वेट ऑफ सच 12 ग्रुप बुक्स. अभी एक बुक का वेट कितना है? 1 ग्रॉस बुक. 1 ग्रॉस का मतलब कितना होता है मालूम है? 144 बुक्स का वेट 36 kg है.
36 kg का मतलब कितना ग्राम होगा, 36 इंटू 1000, ठीक है। तो अभी जरा देखो, 1 ग्रॉस बुक इज इक्वल्स टू 144 बुक्स, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ये तो आपको मालूम है। तो अभी हमारे पास कितना किलोग्राम है बुक्स का किलोग्राम, 36 किलोग्राम। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 36,000, इज इट राइट। तो अभी एक बुक का कितना बोला, अब कितना बुक्स का पूछा है, 12 बुक्स का पूछा है, बराबर। ये कितने बुक्स का है, 144 बुक्स का है। तो इसमें से हम एक बुक का कितना आएगा वो निकालेंगे पहले, बराबर। तो क्या आएगा, देयरफॉर 36,000 डिवाइडेड बाय 144। ऐसा क्यों किया समझा ना, एक का निकालना है, एक बुक का वेट। 36 1 जा 36, ओके, यह सी 36 1 जा 36, 36 4 जा 144। तो ऊपर क्या बचेगा, 1 के ऊपर 2 जीरो मीन्स 1000 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1000 डिवाइडेड बाय 4 आंसर इज 250, इज इट राइट। तो एक बुक का कितना आया, 250। तो अभी कितने बुक्स का पूछा है, व्हाट इज द वेट ऑफ सच 12 बुक्स। 1 बुक का कितना है हमारा 250, तो 12 बुक्स का कितना आएगा 250, 12 बुक्स का क्या आएगा बोलो, 250 मल्टीप्लाई बाय 12, ओके, 250 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इसका आंसर कितना आता है देखो, 250 इंटू 12 अगर हम करते हैं तो 3000 ग्राम, ओके। अभी 3000 ग्राम का किलोग्राम में कैसा करोगे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 3000 इज इक्वल टू 3000 अपॉन 1000 दैट इज 3 kg, ओके, एंड 3 kg दैट इज योर ऑप्शन नंबर इज, ऑप्शन नंबर इज here your option number 3 kg, that is option number 4, okay. Now next question is, a cord of length 560 meter is cut at 7 places to make equal piece of cord. What is the length of 4 pieces so form? अभी 7 जगह कट करते हैं हम, तो कितना पीस बनता है आपको मालूम है, 8 पीस बनता है, बराबर। 7 टाइम्स कट करते हैं तो 8 पीस बनता है। If we cut 7 places then 8 piece और 8 parts, ओके। तो अभी कितना है हमारा लेंथ 560 मीटर डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, तो 8 7 जा 56, तो कितना आएगा 70 मीटर। लेकिन हमें क्या पूछा है, टोटल लेंथ ऑफ 4 पीसेस और 4 पार्ट, तो 4 पार्ट का कितना आएगा और 4 पीसेस का लेंथ 4 मल्टीप्लाई बाय 70, 4 मल्टीप्लाई बाय 70 दैट इज 74 जा 280 मीटर, ओके, 280 मीटर दैट इज ऑप्शन नंबर 1, ओके। ऑप्शन कितना है हमारा बुक में, ऑप्शन नंबर 1, सी ऑप्शन नंबर 1 इज देयर, 280 मीटर, ऑप्शन नंबर 1, इज इट राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन टेक्स 3 hours 5 minutes टू रीच पुणे फ्रॉम CST। अभी CST से निकला है, CST में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से, और वो ट्रेन किधर जा रहा है, पूना में, ठीक है, वो जा रहा है किधर, पूना में। इफ द ट्रेन लेफ्ट CST एट 11:15 AM। अभी 11:15 AM का मतलब मैंने क्या बोला था, AM रहता है तो उसमें कितना ऐड करना है, 12 ऐड करना है, बराबर। तो 11:15 प्लस 12 कर सकते हैं। लेफ्ट एट 11:15 AM, एट व्हाट टाइम विल रीच पुणे, पुणे में कितना टाइम पे वह जा रही है, एक हमें देखना है। तो अभी ये कैसा करते हैं देखो, CST टू पुणे कितना टाइम लग रहा है, 3 hours 5 minutes। अभी 11:15 AM है, इसमें 3 hours 5 minutes क्या करना है, हमें ऐड करना है, ठीक है। तो 11:15 प्लस 3.05, 5 मिनट्स का 05 लिखते हैं, बराबर। तो आंसर क्या आएगा, 11 प्लस 3 14, 15 प्लस 5 20, PM नहीं लिखते तो चलता है, अभी ऐसा रहता है तो PM नहीं लिखना है, 14.20। 14.20 का मतलब इसमें से अगर 12 माइनस करते तो हमारा एक्चुअल टाइम आएगा 14.20 माइनस 12 दैट इज 2:20 PM। तो आंसर क्या आएगा, आइदर 1420 और 2:20, ओके, और 2:20 PM। 14:20 PM नहीं आता, 14:20 और 2:20 PM, दैट इज योर टू आंसर, दैट इज 14:20 ऑप्शन नंबर 3 and 2:20 that is option number 1. The next question is, a drama started at 7:40 PM and ended at 22:15 hours.
हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट। ओके, अभी ड्रामा कितना बजे स्टार्ट हुआ है, देखो 7:40 को स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 20 to 15 का मतलब 20 to 15, इसमें से क्या माइनस करना है हमें मालूम है, 12 माइनस करना है, बराबर। तो कितना आता है 10:15 को वो क्या हुआ। सी ड्रामा स्टार्ट एट 7:40 PM एंड इट्स एट 24 आवर्स। ओके, 24 आवर्स एंड 15 मिनट्स, 22 आवर्स 15 मिनट्स, 22.15। ओके, 22.15 आवर्स को वो क्या हुआ है, एंड हुआ है। 24 ने 22.15, ओके सॉरी 22.15 में से क्या माइनस करना, मैंने बोला था 12 माइनस करना है। ओके, -12, तो क्या आएगा आंसर 10.15। ओके, 10.15, ठीक है। तो अभी मुझे बोलो 7:40 PM टू 10.15, 7:40 to 8:40 कितना हो जाएगा, 1 घंटा, 1 आवर्स। ओके, उसके बाद 8:40 to 9:40, 8:40 to 9:40 कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। ओके, अभी 9:40 to 10 कितना होता है, 20 मिनट्स, 9:40 to 10 कितना होता है, 20 मिनट्स। ओके, और उसके बाद 10 to 10:15 फिर 15 मिनट्स, बराबर 10 to 10:15 दैट इज 15 मिनट्स। तो अभी 15 मिनट्स प्लस 20 मिनट्स तो कितना हो जाएगा, 15 मिनट्स पर 20 मिनट्स 35 मिनट्स। ओके, तो ये देखो 2 घंटा, ये 1 आवर्स, ये 1 आवर, 2 घंटा, और ये 35 मिनट्स, 10 to 10 15 15 मिनट्स, तो 2 घंटा 35 मिनट्स मीन्स 2 आवर्स 35 मिनट्स ड्रामा क्या पूछा है। देन हाउ लॉन्ग डिड इट लास्ट, तो क्या आएगा आंसर 2 आवर्स 35 मिनट्स। ओके, 2 आवर्स 35 मिनट्स दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आवर्स 35 मिनट्स, ऑप्शन नंबर 2 ओके इज योर करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Naina has 800 rupee note. Naina has 800 rupee note. अभी देखो 100 रुपीज़ का 8 नोट्स है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 8 × 100, इतना समझता है। 10 रुपी नोट्स मीन्स 10 का 10 रुपीज़ नोट्स, तो 10 × 10 हो जाएगा 100 रुपीज़। 20 रुपी नोट्स मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 20। देन हाउ मच मनी डज शी हैव, ओके 8 × 100 दैट इज 800, 100 रुपीज़ का 8 नोट्स है, ठीक है। उसके बाद 10 रुपीज़ का 10 नोट्स, 10 × 10 कितना हो जाएगा 100, ओके। उसके बाद 20 रुपीज़ का 20 नोट्स मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाय 20 दैट इज 400, 20 × 20 400। तो अभी क्या पूछा है, हाउ मच मनी डज शी हैव, तो ये सबका क्या करना पड़ेगा हमें टोटल, तो 8 + 4 12 + 1 रुपीज़ 1300 दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ओके ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। शेयर 1300 रुपीज़ दैट इज ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹5, ₹20 एंड ₹50 मेक 4500 रुपीज़। व्हाट इज द नंबर ऑफ ईच ऑफ द डिनोमिनेशन ऑफ द नोट्स। अभी देखो 5 रुपीज़ का कितना है मालूम नहीं, नोट्स 20 रुपीज़ का कितना है मालूम नहीं, तो हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच ₹5, ₹20 एंड ₹50 बी x। तो क्या आएगा 5x + 20x + 50x इज इक्वल टू ₹4500 अंडरस्टूड। लेट द इक्वल नंबर ऑफ नोट्स बी x, तो 5x प्लस कितना है 20x + 50x इज इक्वल टू ₹4500। तो 5 + 20 25, 25 + 50 कितना आता है 75x इज इक्वल टू 4500। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 4500 डिवाइडेड बाय 75, ओके 4500 डिवाइडेड बाय 75। तो नाउ हियर 4500 डिवाइडेड बाय 75, 75 1 जा एंड 75 60 जा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 60। तो हियर आंसर 60 इज देयर, सी ऑप्शन नंबर 3, ओके 60। ईच ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स कितना है वह 60, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूज़पेपर वर डिलीवर एट रानीज रेसिडेंस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। अभी मई मंथ का डेज कितना आता है बोलो 31 डेज, ये तो मालूम है सबको, मई मंथ का 31 डेज आता है, ठीक है।
द प्राइस ऑफ न्यूज़ पेपर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे वॉज ₹3। मंडे टू फ्राइडे में कितना रुपीज़ है? ₹3 है। एंड डैट फॉर सैटरडे एंड संडे वॉज ₹5। में फर्स्ट में वॉज संडे। अभी मुझे बोलो फर्स्ट में को क्या है? फर्स्ट में इज संडे है, तो सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों डेज जो है वो 5 टाइम्स आएंगे। संडे 5 टाइम्स आएगा, उसके बाद मंडे 5 टाइम्स आएगा और ट्यूसडे भी 5 टाइम्स आएगा। ये तो समझ रहा है सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। शेयर मंडे टू फ्राइडे 5 डेज। ओके, एक डेज का कितना रुपीज़ है? ₹3 है, तो 5 3 हो गया, टोटल डेज ₹15 हो गया टोटल। और ऐसा कितना बार आ रहा है? ए डेज 4 टाइम्स आ रहा है, तो 15 4 कितना होगा? 60। देखो फिर एक बार बताता हूँ, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज है, ऐसा करेंगे 5 4 20 डेज, तो 20 3 भी 60 आता है। संडे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। क्यों 5 आ रहा है? पहले 4 संडे और फर्स्ट में का एक संडे, तो 5 5 25। इधर ₹5 से क्यों किया? क्योंकि संडे का जो प्राइस है वो कितना है? ₹5 है। ठीक है, सैटरडे भी 5 आ रहा है, सॉरी 4 सैटरडे आ रहा है। देखो सैटरडे 4 आ रहा है ना, तो 4 × 5 कितना होगा? 20। अभी एक्स्ट्रा डेज कौन सा आ रहा है? देखो संडे एक एक्स्ट्रा आ रहा है, मंडे और ट्यूसडे। तो मंडे और ट्यूसडे कितना डेज होता है? 2 डेज होता है। एक डेज का प्राइस ₹3 है, तो 2 3 कितना होगा? ₹6। तो इसका टोटल करेंगे हम, तो 5 6 11, 6 + 2 8 + 2 10 + 1 11। तो आंसर आएगा 111, दैट इज 111, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। शेयर ऑप्शन नंबर 3 111। फिर एक बार बताते हो कैसा आया। देखो अभी देखो इधर देखो, संडे है, संडे कितना आया? 5 संडे आया, तो 5 × 5। ओके, कितना होगा संडे का? 5 5 ₹25। समझ रहे? 5 संडे का 25। सैटरडे कितना आ रहा है? 4, एक सैटरडे का ₹5 है, तो 4 5 सैटरडे का कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, बराबर। उसके बाद देखो मंडे टू फ्राइडे 5 डेज होता है, तो 5 4 20 डेज। ओके, और मंडे और ट्यूसडे तो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो कितना डेज हो रहा है टोटल? 22 डेज। 22 और एक डेज का कितना है? ₹3 है, तो 22 3 कितना आता है? 66। ऐसा भी करते हैं तो भी आंसर सेम आ रहा है। देखो 6 + 5 11, 1 कैरी, और इसका भी आंसर 111। तो ऑप्शन नंबर 3। दिस एंड्स योर टॉपिक। विच टॉपिक? दैट इज शेयर टॉपिक नंबर 19, मेट्रिक मेजर्स पार्ट 3। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।